Okay, a very good evening to one and all. So we have discussed till question number 80 yesterday, if I am not wrong. Today we will be discussing more questions in the paper of 2025 January attempt of UGC NET, right? So without wasting any time, let's move to the question number 81, which is a very simple question, and I think it has to be corrected by most of you. ये होना चाहिए था क्वेश्चन, मतलब it was, मुझे देख के लगा सबसे इजी क्वेश्चन है आज तक का, क्योंकि जब पहली बार for the first time being, if somebody would ask you that solar constant, so everyone will say 1367, 1367. This is the kind of response you will listen, right? And everyone know that what actually the solar constant is. So if we see question number 81, it is very simple, and I would say it should have been corrected. Everyone should have been corrected. Very easy question. So it say a solar constant is. So all the points have been mentioned with respect to the solar constant, right? So average temperature at sun surface, this cannot be true. The average temperature of sun surface is not this. Average temperature of sun surface is 5778 Kelvin. So ideally speaking, this is not correct. ये option तो आपका चला गया. Then we say a measure of solar energy impinging upon sun facing unit area of Earth's top of the atmosphere. This is correct, right? It is basically the amount of energy coming to the Earth's surface on a given area in a given time, solar constant. Then they are saying its value is 1000 watt per meter square. Everyone knows this, that the value of the solar constant is 1367 watt per meter square. So this is also not correct, right? Then comes the fourth option, that it is variable. Yes, it is variable. It varies from place to place. So absolutely right. So we have B and D as a correct option, which basically belongs to third choice. So the correct answer for 81 is third, B and D. Now we'll see the explanation which have been attached beneath the question and is accessible to all of you, right? So let's have a look at this. So option wise option we will go. It says that it is the average temperature on surface. No. Actually, definition of solar constant is the solar constant is the amount of solar electromagnetic energy received per unit area at the top of Earth's atmosphere when the Earth is at mean distance from the Sun. And it measures of solar power per unit area usually expressed in watt per meter square, and the value is 1361. But often we also write down 1367, right? So these three values generally you will get 1361 or 1367, and it represents the incoming solar radiations on surface perpendicular to the sun's ray. Now let's evaluate the options which have been given. So the very first option says that it's average temperature at sun surface. No, uh, it is incorrect. Average temperature of sun surface is 5778 Kelvin, but it's not definition of solar constant, right? So this is wrong. Then the second option which says that it's a measure of solar energy impinging upon sun surface area, Earth's top atmosphere. This is correct. This is actual definition of uh, solar constant. Then we have a third option which says 1000 watt per meter square. Already told you 1361 or 1367 watt per meter square. So this is also incorrect, right? Then we incorrect it. Then variable, as I told you that it is variable. Yes, it is variable. It changes from place to place over the Earth's surface, right? So it changes. So we can simply say here variable. Yes, it is variable. Although called constant, in solar constant varies slightly, 0.1% do change in the solar activity like sunspot and solar cycle. So its value do change. तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, एवरीवन शुड हैव करेक्टेड दिस. हाँ, इसका नाम तो कांस्टेंट है पर कांस्टेंट है नहीं, ये बात भी बिल्कुल ठीक बात है, राइट? So the correct answer here is third, which is B and D, right? I hope it is clear to each and everyone. Anyone having any doubt in question number 81? Quickly, guys. किसी को कोई डाउट है? All the people respond quickly so that we can do as many as question. करुणा, मैती, मित्तल, पूजा, प्रीति, प्रिया, शालू, शिक्षा, सोनिका, वैदेही, विजेता, अंजलि. Anyone?
चलिए, so please do respond if you get any difficulty in any question. Now let's move to question number 82, which is also very simple. आज ही मैंने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन तो, right? And I was telling you people that when you says basaltic, right? So it is simply the type of basalt, the typical basalt. So I have discussed this today in the class of rocks and minerals. This was the very simple question. So question number 82 is says a typical basalt consists approximately 50% of what? अब देखिए इनडायरेक्ट भी आप कर सकते थे। एल्यूमिनियम 50% होता नहीं है, आयरन नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है 50%, राइट? और ये आपकी बुकलेट की लाइन है, अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको मिनरल एंड रॉक्स में ये लाइन लिखी हुई मिलेगी बिल्कुल लास्ट में, जहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं, राइट? और हम कहते हैं बेसोल्टिक मैग्मा। तो वहां पे लिखा ही ये है कि जो बेसोल्टिक मैग्मा है वो आपका बेसिक कैरेक्टर की तरफ चलता है। बेसिक कैरेक्टर कहने का मतलब ये है 44 to 52% ऑफ लाइक SiO2, ठीक है? तो ये क्वेश्चन वही खत्म हो गया था कि 44 to 52% अब SiO2 कह रहे हैं, तो 50% का रेंज तो आ गया ना उसमें। और हमने उस दिन भी ये क्लासिफाई करवाया आपको कि जो टाइप्स ऑफ रॉक हम क्लासिफाई कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, अगर सबको याद आ रहा है, तो उसमें एक क्लास बनवाई गई थी आपसे 44 to 52% बेसिक और मैफिक, जिसमें बेसॉल्ट सबसे अच्छा एग्जांपल है। वहां पे 52 to 44%, ये क्वेश्चन वहां से भी कैच किया जा सकता था। 44%, ठीक है, SiO2, तो इसमें तो 50 आएगा ना भाई। करेक्ट आंसर हो गया SiO2। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन लगा मुझे इस पेपर में ना, डायरेक्टली सीधा बुक की लाइन लिखी हुई है अपने नोट्स की, कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है? और ज्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं था, ठीक है? क्लियर है? और एनीवन हैविंग एनी डाउट? एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम क्वेश्चन हैव बीन अटैच, और ये डायरेक्टली आया है सीधा क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि बेसॉल्ट का कंपोजिशन क्या होता है, आज ही पढ़ाया है मैंने। तो अंडरस्टैंडिंग द बेसॉल्ट कंपोजिशन, बेसॉल्ट इज अ मैफिक igneous rock formed from the rapid cooling of lava at the surface of earth, and it is rich in iron, magnesium and SiO2 compared to felsic rock which is granite. So silica is 44 to 55%, aluminum 13 to 16, iron 10%, calcium oxide 10, magnesium oxide 5 to 10, sodium and potassium oxide 2 to 5%. So this could be asked in future also, that what are there in the composition, but the question was very simple in total. Let's come to question number 83, again rock and mineral। रॉक एंड मिनरल ने तो बिल्कुल एकदम, ये भी क्वेश्चन मैंने आज ही पढ़ाया है लकीली, तो मैंने बोला भी था कि आपको ये क्वेश्चन आएंगे, मिनरल से क्वेश्चन गाइस आएंगे पक्का। मिनरल कैन लीड यू 3 क्वेश्चन ऑल्सो, इतना इंपॉर्टेंट है मिनरल, ठीक है? रॉक एंड मिनरल में मिनरल का वेटेज इतना हाई है कि 3 क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। मैं आपकी जगह होता तो मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने का मेरा मीनिंग क्या था इस क्वेश्चन में, अगर मैं आपकी जगह होता क्वेश्चन नंबर 83 में, मैं सिलिकेट स्ट्रक्चर को देखता और फिर उसके मिनरल से उसको मिलाता। तो मैंने आपको पढ़ाया है दैट वी हैव सिंगल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट, शीट सिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट। और आज ही हमने पढ़ा है कि एम्फीबोल आपका डबल चेन सिलिकेट होता है, राइट? और पायरोक्सिन आपका सिंगल चेन सिलिकेट होता है, राइट, है ना? तो सिंगल चेन सिलिकेट में पायरोक्सिन का नाम आता है, ये मैंने आपको बताया। डबल चेन सिलिकेट में आपका जो है एम्फीबोल का नाम आता है, ये भी मैंने आपको बताया। और कुछ मिनरल्स मैंने आज और भी लिखवाए थे कि किसको हम क्या कहते हैं, तो वो बड़े काम की चीज है वो। मतलब इतना, सिंगल चेन में आपके पायरोक्सिन आ जाएंगे, ठीक है? और डबल चेन में आपके एम्फीबोल आ जाएंगे, राइट? और आपके शीट चेन में आपके क्या आ जाते हैं, मैंने बताया था माइका, ठीक है ना? तो माइका में शीट चेन आपका आ जाता है, और ये 3D वाले भी आपके लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को बैक ट्रेस करना था। अब जैसे
मैंने आज ये पढ़ाया आपको कि भाई जब आप माइका की बात करते हैं तो बायोटाइट एक तरह का माइका है, और माइका जो है शीट चेन सिलिकेट है। ये यहाँ पे सबसे तकड़ा हिंट है बुकलेट से। बायोटाइट इज अ टाइप ऑफ माइका, एंड माइका इज बेसिकली आपका शीट चेन सिलिकेट। तो लगाए शीट से इसको मिला दिया। जैसे ही मैंने ये कैच किया, सबसे सिंपल हिंट जो मेरे लिए था C4, तो मेरे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं 110% श्योर हूँ कि C4 तो पक्का है, कि बायोटाइट माइका होता है और माइका शीट चेन सिलिकेट होता है। तो C4 में जो है उसको रख लो, बाकी को हटा दो, ये दो ऑप्शन तो हटे। ऐसे आपको एलिमिनेट करना होता है। अभी भी मेरे पास कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है हॉर्नब्लैंड। तो हॉर्नब्लैंड इज बेसिकली अ मिनरल ऑफ एम्फीबोल। ये भी आज ही क्लास में पढ़ाया है कि हॉर्नब्लैंड जो है एम्फीबोल होता है एक तरह का। एग्जाम्पल में पढ़ाया था और भी लिखवाए थे। तो हॉर्नब्लैंड जो एक तरह का एम्फीबोल है, और एम्फीबोल मैंने बताया है कि डबल चेन सिलिकेट है, तो ये भाग गया ऊपर। तो B1 हो गया, और B1 होते ही तो मेरे पास आंसर आ गया। तो आपको सारे नहीं मैच करने होते। 100% एफिशिएंसी के साथ एक या दो मैच भी अगर आप करेक्टली फाइंड आउट कर लो ना, तो बहुत टाइम एग्जाम में सेव हो जाता है। ऐसे टाइम सेव किया जाता है। अब लोग क्या है, चारों के चारों को ढूंढने में लगे हुए हैं। अरे भैया, जब मैं दो पे 100, कई बार तो क्या होता है कि एक ही आपको पता है सॉलिड 200% करेक्ट, और यू आर सपोर्टिंग दैट ऑप्शन टिल लास्ट, वो आपको जिता देता है। तो आपको सब जानने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये तो मुझे पता चल गया कि बी मेरा 1 पे चला गया। अब दो बचे हैं मेरे पास, एक ऑगाइट बचा है और एक बचा है क्वार्ट्ज। तो यहाँ पे ऑगाइट जो है आपका सिंगल चेन सिलिकेट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑगाइट बुक, ये भी मजे की बात, बुकलेट में सिर्फ एक लौता एग्जांपल लिखा हुआ है पायरोक्सिन के अंडर में। अगर आप चेक करेंगे ऑगाइट, आप अभी भी अपनी कलर बुकलेट खोल के चेक कर सकते हो। मैंने तो आज सुबह ही क्लास ली है, तो मुझे पता है कि ऑगाइट में सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखा हुआ है पायरोक्सिन में, ऑगाइट, ठीक है। और वही एग्जाम में पूछा हुआ है, आप देख लो। तो ऑगाइट जो है गाइस आपका सिंगल चेन सिलिकेट होता है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू पायरोक्सिन कैटेगरी। तो फिर भी लोग कहते हैं जी कहाँ से आया, तो फिर तो भैया बड़ा मुश्किल है, ठीक है। हाँ, एक ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया, तो ऑगाइट आपका चला जाएगा सिंगल चेन पे। ऑगाइट को मैंने मैच कर दिया सिंगल चेन से जी। अब एक ही ऑप्शन बटा क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या है, जब 3D की आप बात करते हो, क्वार्ट्स तो प्योर सिलिका होता है। तो और 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है इसका, क्वार्ट्स का जो है ना, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं ये, ठीक है। 3D नेटवर्क होता है क्वार्ट्स का, SiO2 टेट्राहेड्रा इसके अंदर होता है। तो क्वार्ट्स को फाइनली मिला देंगे 3 डायमेंशनल नेटवर्क से। तो करेक्ट आंसर आपको मिल ही गया है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 83। बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन टफ है। तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए किसी के भी, जो बिल्कुल डायरेक्टली बुकलेट से आपको सीधे मिल रहे हैं, ठीक है। आप खोल के देख सकते हो, ये लिखी हुई है चीजें जो मैंने बताई। बाकी एक्सप्लेनेशन हैव बीन अटैच, लाइक व्हाट वी हैव। तो सिलिकेट्स में यहाँ आइसोलेटेड टेट्राहेड्रल होते हैं, नियो सिलिकेट, देन सिंगल चेन पायरोक्सिन, डबल चेन एम्फीबोल, ठीक है। आइनो सिलिकेट्स होते हैं, और शीट सिलिकेट या फाइलोसिलिकेट्स भी आपके होते हैं, ठीक है। एम्फीबोल को हम कहते हैं। देन वी हैव फ्रेमवर्क टेक्टोसिलिकेट्स विच इज बेसिकली द कैटेगरी ऑफ क्वार्ट्स। टेक्टोसिलिकेट हम 3D नेटवर्क होता है टेक्टोसिलिकेट का, ये जो बताना है पॉइंट आपको। टेक्टोसिलिकेट इज क्वार्ट्स एंड विच इज हैविंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क। देन ओगाइट मैंने आपको बताया, पायरोक्सिन है, हॉर्नब्लेंड। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन। तो ये सब आपको मिलेगा अपने बुकलेट में भी है, तो यहाँ पे भी हमने मेंशन कर दिया है। बट एज सच रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ये तो डायरेक्टली आया है। टेक्टोसिलिकेट क्वार्ट्स को इन्होंने कैच किया, तो एक नहीं पूछ रहे हैं, चार चार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बट आपकी जो विलिंगनेस होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता हो भैया ये तो यही होता है और कोई होता ही नहीं है, राइट, है ना। ये ध्यान रखना आप लोगों को। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 84, विच इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है, जो रेजोल्यूशन वाला क्वेश्चन है। इट हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट ऑल्सो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, तो हम क्योंकि इसको पढ़ लेते हैं, और वैसे ही ये बहुत अच्छा कोर्स एक मेरा और अली सर का है दिसंबर में, GIS एंड रिमोट सेंसिंग का, आप देख सकते हो।
ठीक है, छोटा ही कोर्स है, बहुत बड़ा नहीं है, 8 8 आवर्स के आसपास की ड्यूरेशन होगी, किसी भी एक का देख सकते हो, मेरा अली सर का। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 84 की जब हम बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि द सेंसिटिविटी ऑफ रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर टू डिफरेंस इन सिग्नल स्ट्रेंथ। राइट, है ना। तो कितना सेंसिटिव है डिटेक्टर आपका, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। तो यहाँ पे 4 तरह के रेजोल्यूशन बताए, रेडियोमेट्रिक, स्पेक्ट्रल, स्पेशियल एंड टेम्पोरल रेजोल्यूशन। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं कि ये रेजोल्यूशन होते क्या क्या है जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग में। तो सबसे पहला बात की है इन्होंने रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन की। तो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन गाइस एक्चुअली में क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द रिमोट सेंसिंग सिस्टम या सेंसर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरी स्लाइट डिफरेंस इन द सिग्नल स्ट्रेंथ टू ब्राइटनेस रेडियस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्टेड और एमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसको वो इंडिकेट करता है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा इसे। इट इंडिकेट द नंबर ऑफ डिजिटल वैल्यूज और शेड्स ऑफ ग्रे इन अ ग्रे स्केल इमेज और स्पेसिफिक कलर वेरिएशन a sensor can record, right? So sensor typically record the data as digital number, DN number जो मैंने आपको बताया था 0 to 255, right? 256 बिट का सिस्टम होता है तो अगर, right? तो ये हमने लिखा हुआ है सारा बुकलेट में आपका, ठीक है। और ये सिस्टम्स आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो दूसरा आता है आपका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, स्पेक्ट्रम जो आपकी वेवलेंथ है या बैंड है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में बैंड या वेवलेंथ के बारे में बात होगी। एंड दिस रेफर्स टू द नंबर एंड द विड्थ ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। मैंने बोला ना, वेवलेंथ या बैंड्स के बारे में बात करेंगे, दैट टू अ सेंसर कैन मेजर। सो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर कलेक्ट डाटा इन फ्यू ब्रॉडबैंड। जो मल्टी स्पेक्ट्रल होते हैं, 2 तरह के होते हैं ना, एक आपके जो है मोनोक्रोमेटिक होते हैं और एक पॉलीक्रोमेटिक सेंसर होते हैं आपके, या मल्टी स्पेक्ट्रल कहते हैं उसको। मल्टी स्पेक्ट्रम में ब्लू, ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड, while हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर भी होते हैं which collect data in many narrow and continuous bands. Higher spectral resolution allow for more specific identification of material based on their unique signature sequences, how they reflect or emit the energy in different wavelength. For instance, distinguishing between different tree species might require very narrow spectral band. तो ये हमने पढ़ा भी है, जैसे एच डी आपका एनडीवीआई होता है, नॉर्मलाइज डिफरेंस इन वेजिटेशन इंडेक्स, ठीक है ना, स्नो इंडेक्स। तो इस तरह से आप सिग्नेचर सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइटम। हाँ, पेनक्रोमेटिक भी कहते हैं, ठीक है ना। और मल्टी स्पेक्ट्रल 2 तरह के रहते हैं। तीसरा आता है आपका स्पेशियल रेजोल्यूशन। स्पेशियल रेजोल्यूशन डेफिनेट सी बात है कि स्पेस से रिलेटेड है और ग्रिड साइज पे डिपेंड करता है कितना होता है। तो स्पेशियल रेजोल्यूशन इज ऑल्सो देयर which refers to the size of smallest object on area on the ground that can be resolved or distinguished in the image, and it is typically expressed on the ground sample distance, GSD होता है, which is the physical dimension of a pixel on the ground। तो जो आप पिक्सल्स बनाते हैं ना या ग्रिड बनाते हैं, जैसे मैंने मान लो ऐसा बना दिया एक ग्रिड और मैंने आपको कहा कि 1 into 1 का है ये, 1 mm into 1 mm का है, तो ये इसका ग्रिड साइज हो गया, ठीक है। तो जैसे 1 into 1 mm का एरिया आपने ले लिया सेंसर में, तो ये ग्रिड साइज आपका वेरी करता है कितने पिक्सल को ये कैप्चर कर पाएगा। जितना ज्यादा हाईयर स्पेशल रेजोल्यूशन होगा उतना ही छोटी चीज को वो दिखा पाएगा आपको। देन वी ऑल्सो डू हैव अ टेम्पोरल रेजोल्यूशन इन GIS and remote sensing. And when you talk about temporal resolution, then this refers to the frequency at which the sensor collect the image of the same area on the Earth's surface, and it's the revisit period of the satellite। तो जो सैटेलाइट का रिविजिट पीरियड है ये वो रहता है, राइट। तो सम सैटेलाइट रिविजिट द सेम स्पॉट डेली, वीकली और मंथली। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी में दिखाते हैं, जैसे आपकी जो पोखरण मूवी थी उसमें आपने देखा होगा कि सैटेलाइट का ये टेम्पोरल रेजोल्यूशन होता है, इस टाइम सैटेलाइट यहाँ से गुजरेगी, तो ये सेम होना चाहिए, है ना। जैसे आपका मोडिस पे भी है, एक्वा एंड टेरा सैटेलाइट की 24 आवर का इमेज वो करते हैं, फायर काउंट्स का, ठीक है। तो हाइयर टेम्पोरल रेजोल्यूशन इज क्रूशियल फॉर मॉनिटरिंग डायनेमिक प्रोसेस जैसे वेजिटेशन ग्रोथ, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड क्लाउड कवर चेंजेस एंड ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ फिनोमिना। तो ये टेम्पोरल रेजोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। जिनको भी देखना है वो देख सकते हैं, वो कोर्स जो दोनों है ना अच्छे कोर्स हैं, मतलब आपको एक क्वेश्चन जो आएगा वो मिल जाएगा। सो इफ यू टॉक अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर टू डिफरेंस इन सिग्नल स्ट्रेंथ, तो भैया यहाँ पे दोनों चीजों की बात हुई है। एक तो सेंसिटिविटी कितनी है डिटेक्टर की, कितना अच्छे से वो डिटेक्ट कर सकता है, टू डिफरेंसेस इन सिग्नल,
तो इसको सिग्नल टू नॉइज रेशो भी कहते हैं, और इस तरह का जो रेजोल्यूशन होता है उसको हम गाइस कहते हैं रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। तो द करेक्ट आंसर हियर इज रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, विच इज द ऑप्शन नंबर 1। तो करेक्ट आंसर इज 1 in 84। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ फटाफट भाई, क्विकली रिस्पॉन्स करो, क्विकली, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 84 इज 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम आपके असाइनमेंट से डायरेक्टली आया है। ठीक है, डायरेक्ट असाइनमेंट से आया, रिपीटेड क्वेश्चन है, गिलबर्ट मास्टर की लाइंस हैं। ठीक है, और ये लिखी भी हुई है, आपको पढ़ाई भी गई है मल्टीपल टाइम्स कि कोई भी अगर सब्सटेंस होता है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट। सो क्वेश्चन नंबर 85 से विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर यूज्ड टू कैलकुलेट द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ अ ग्रीन हाउस गैसेस। तो भैया जीडब्ल्यूपी कैसे कैलकुलेट होता है? पहले आप देखोगे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर आप देखोगे कितनी विंडो है, एटमॉस्फेरिक विंडो में एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा, स्पेक्ट्रल विंडो कहाँ एब्जॉर्ब करता है, तो स्पेक्ट्रल विंडो कहाँ एब्जॉर्ब करता है, कंसेंट्रेशन ये भी चलेगी, बिल्कुल ठीक बात है। एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम कितना है ये भी मैटर करेगा, ज्यादा समय तक रहेगा तो ज्यादा चांसेस है कि वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करे। और कितना उसका एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी या हाउ मच इट एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन, तो सारे के सारे फैक्टर जो है दे आर इम्प्लिसिट टुवर्ड द कंसेंट्रेशन, स्पेक्ट्रल विंडो, एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम एंड एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। तो करेक्ट आंसर विल बी ABCD। सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, ABCD विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 85। So let's see the explanation for the same which have been attached with the question। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है, जैसे यहाँ पे CO2 का एग्जांपल दिया है, तो GWP is a measure of the how much energy of emission of 1 ton of given gas will absorb over a period of time related to emission of the CO2। क्योंकि CO2 का GWP आपको पता है 1 होता है। ठीक है, 1 है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा, एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, दिस रेफर्स टू हाउ लॉन्ग द ग्रीन हाउस गैस परसिस्ट, ये भी मैटर करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। फिर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी या रेडिएटिव एफिशिएंसी, यस, हाउ इफेक्टिवली द मॉलिक्यूल गिव द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और स्पेक्ट्रल विंडो या वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन, जिसमें आप बात करते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो की, कि किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस बात पे भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो जो भी गैस आपकी IR रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है तो या एटमॉस्फेरिक विंडो में एब्जॉर्ब करती है, तो वो तो बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी, हमने ये पढ़ा भी हुआ है। तो इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट हो सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगेन ये रिपीट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, चाहे पोटेंशियल पूछ लें, कॉन्सेप्ट रिपीटेशन बहुत ज्यादा है गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 विच इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन, एनालिटिकल मेथड से है, ये मैम ने आपको पढ़ाया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बुकलेट में ऑलमोस्ट मेंशनिंग है इन सारी चीजों की, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वट एवर यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, all these things are there, right? All these things are there, right? So if you see, they are asking the best method for separation and identification, both the things has to be done, right? This was the key point in the question, that the best method for separation and identification, two things are there. You have to separate the molecule and you have to identify the molecule, right? Both the things are there. Of a trace level high molecular weight biomolecule, and the molecule should be having high molecular weight and the quantity should be very less, trace level। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे देख के लगेगा कि भाई एक से ज्यादा टेक्निक हमारे काम की हो सकती है, बट एवरी टेक्निक हैव अ स्पेसिफिकेशन, राइट, which we should understand that why we choose LCMS, liquid chromatography mass spectrometry, क्योंकि as per the specification वो फिट बैठेगा, उसको हम देख लेते हैं कि क्यों फिट बैठेगा। ठीक है, वन बाय वन। तो as mentioned in the question, you can see that separation and identification both we have to do. So this method must be able to do separate the mixture and identify the component. One requirement is this. Another requirement is this, the trace level. The method needs high sensitivity because the quantity will be very less and you have to estimate it, right? Then the third requirement of specification is that high molecular weight biomolecules, right? High molecular weight biomolecule, and this is a crucial constraint, and as it limits the applicability of some of the techniques. So the molecules of higher molecular weight should also be able to identified by the same.
Now let's go one by one on options. So first is GCMS. GCMS basically stands for gas chromatography mass spectrometry, right? GCMS is one of the very good device, right? But they have something which is different from what is being asked in the question. So gas chromatography separate volatile and semi-volatile compound. It is only good for those compounds which forms vapor, which are volatile or semi-volatile, and by passing them through the capillary column, separation is based on difference in boiling points and interaction with the stationary phase. So we have stationary phase and the mobile phase in this. So separation is basically based on their boiling point and interaction with the stationary phase. Identification, if we talk about, mass spectrometry identifies compound by ionizing them and then separating the ions based on their mass to charge ratio. That is the basic principle. They provide a unique fingerprint spectrum for identification. For high molecular mass, whether it is suitable or not, because all three criteria you have to check, then only you can say हाँ ये वाला fit रहेगा इसके अंदर. Third thing is that whether it is suitable for high molecular mass or not, GCMS, that we have to see. This is the major limitation of GCMS. For compound to be analyzed by GC, it must be volatile or easily derivatize to become volatile without degrading. High molecular weight molecule like large protein, complex carbohydrate, and nucleic acid are generally non-volatile and thermally labile, prone to degradation on high temperature. तो यहां से मुझे इसको कट करना पड़ गया because it was not fulfilling the last condition. It was not suitable for molecule having high molecular weight. इसलिए इसको मुझे rule out करना पड़ा. ठीक है, it was not suitable. तो ये ऑप्शन तो चला गया मेरा. GCMS is not in picture. Then we move to the second option, which is HPLC, high performance liquid chromatography, right? So what we learn from GCMS is that GCMS is sensitive, but its applicability is limited by volatility. So we cannot use in the question what have been asked. Then we move to the next option, which is HPLC with UV detection. So if you talk about high performance liquid chromatography or high pressure liquid chromatography, right, with ultraviolet detection. So HPLC separate the compound based on their different interaction with the stationary phase and a mobile phase. It is suitable for wide range of compound, including non-volatile and thermally labile ones, right? If we talk about identification, UV detection measures the absorbance of UV light by eluting compound, and it provides a signal proportion to the concentration of the compound, but it is not highly specific for identification. Many compounds absorbs at similar UV wavelengths, making definitive identification difficult without addition of information or standard. When we talk about the suitability for higher molecular weight, HPLC itself is excellent for separating high molecular weight biomolecules, right? So it is suitable for high molecular weight, but trace level, right? Trace level वाला जो point है वो यहाँ fulfill नहीं होता है. UV detection has good sensitivity, but often it is not sensitive enough for trace level unknown or complex biomolecules, especially if they don't have strong chromophores. Chromophores are basically color molecules or color moiety. More importantly, it lacks the specificity for definitive identification. तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और ट्रेस लेवल को ये चेक नहीं कर पाता, तो HPLC पे भी कांटा लग गया क्योंकि इसने कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया. ट्रेस लेवल के लिए भी अच्छा नहीं है और ये हमारे जो है आइडेंटिफाई भी अच्छे से नहीं कर. देन कम्स द LCMS, which is liquid chromatography mass spectrometry. Is it will be capable of fulfilling all? Yes. LCMS, liquid chromatography mass spectrometry, right, separate compounds as described above, making it highly suitable for non-volatile thermally labile high molecular weight biomolecule. And mass spectrometry provide highly specified and sensitive identification techniques. Then suitable for high molecular weight, excellent, because for high molecular weight ही LCMS use करते हैं for analyzing complex mixture of non-volatile and high molecular weight biomolecules such as protein and all. Trace level, excellent, because liquid chromatography only need a dot, right? LCMS knows for high sensitivity, allowing the detection, identification compound with a trace concentration. So all the conditions are fulfilled, means excellent, go ahead. This is the one which we are searching. That's why LCMS is the correct answer, because we were searching for something who is suitable
in terms of separation, in terms of identification, in terms of high sensitivity, in terms of the high molecular weight, सारे के सारे options ये fulfill करता है. Then we have last but not the least, which is GPC and array detection. Gel permeation chromatography, GPC, with refractive index detection, right? So GPC is also known as size exclusion chromatography, right? And separate molecule primarily based on their hydrodynamic volume size of solution. Larger molecule elute first, and it is often used for polymer of high molecular weight. Identification: refractive index detector must change in the refractive index of the mobile phase to elute, right? And detector detect almost anything but is non-specific for identification. Identify नहीं कर पाएगा, right? It tells you something is there and it's the concentration but not what it is definitely. तो identify करने में fail हो जाता है. हाई मोलिकुलर वेट जीपीसी सुटेबल फॉर सेपरेटिंग हाई मोलिकुलर वेट बायोमोलिक्यूल. तो यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया इसमें कम रह गया. So that's why this is also not fit. This is also not fit for us. So cut. So that's why we choose LCMS. The story was long, but you should know that why LCMS was chosen, because it fulfill all the conditions which is asked in the question. So the correct answer here is LCMS, liquid chromatography mass spectrometry, for question number 86, which is suitable for separation, identification, for detecting the very trace levels, and for high molecular weight biomolecules. अच्छा क्वेश्चन था ये, आई वुड से. इट विल चेक योर ब्रेन. अगर आपने टेक्निक अच्छे से पढ़ी है तो ये आपको आएगा गाइस, वरना नहीं आएगा. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 86 क्लियर है सबको? जल्दी बताइए. एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 86? हम पीसफुल जा रहे हैं बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू रीड द सोल्यूशन फॉर एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस बिफोर यू गो टू एग्जाम. तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि what sort of the benefits or the push you will getting into the exam, right? That we want from each one of you. हमें वो चाहिए. Now let's go to question number 87. Question number 87. So it is a very simple question. Today only I talked about this. और ये टेबल से आया है. टेबल आपके में दी हुई है. टेबल मेटामॉर्फोसिस की टेबल दी हुई है, मैंने लिखवाया भी है. ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है. एक ही टेबल है आपकी बुकलेट में जहाँ पे डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म का जिक्र है गाइस, और वहीं से ये क्वेश्चन आया है जहाँ पे हम रीजनल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टेक्ट और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 87 कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीजनल मेटामॉर्फिज्म ऑफ द शेल, राइट? तो इट्स द सेम क्वेश्चन कि रीजनल मेटामॉर्फिज्म की जब हम बात करते हैं तो हाउ इट विल मूव, राइट? तो सबको पता है कि स्लेट में कम होता है, फिर आपका आता है फिलाइट, देन इट कम्स टू सिस्ट, और लास्ट में आती है नीज, राइट? तो आपसे पूछा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीजनल मेटामॉर्फिज्म ऑफ शेल. So definitely speaking, when you have the shale, so shale is going to get metamorphized into slate. ये मैंने पढ़ाया आपको ना. Then after the slate it will be phyllite, right? सारा ऑर्डर ये दिया हुआ है इसमें, वो टेबल के अंदर भी है. आफ्टर द phyllite it will be cyst, मैंने कल भी बताया था क्लास में. एंड आफ्टर cyst फाइनली it will be knees, और अगर एक स्टेप और बढ़ा देता तो ग्रेनेटिक नीज. ठीक है? तो मैंने आपको बताया भी था कि रीजनल मेटामॉर्फिज्म में बड़े स्केल पे ये होता है. तो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी फोर्थ, और ये एज सच उसी टेबल से पिक हुआ है क्वेश्चन. तो वंस द शेल विल बी हैविंग मेटामॉर्फिज्म इट विल फॉर्म द स्लेट, देन इट विल फॉर्म फिलाइट, then it will form cyst, then it will form knees, then it will form granitic knees. This is the order, right? This is the order. Clear है सबको? जल्दी बताइए.
and we have mentioned each and everything which is needed for the explanation. So slate लोएस्ट ग्रेड मेटामॉर्फिज्म, एक क्वेश्चन यहाँ से और आ सकता है, लोएस्ट ग्रेड कौन है, तो लोएस्ट ग्रेड इसमें शेल है, या इन ऑप्शंस में से पूछे तो स्लेट है, और हाईएस्ट ग्रेड आपका नीज है ना। मैंने मेंशन कर दिया है सब कुछ कि नीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेल टू स्लेट फिलाइट सिस्ट नीज, स्लेट इज लोएस्ट मेटामॉर्फिज्म ग्रेड, फिलाइट इज इंटरमीडिएट, सिस्ट इज हाइयर एंड नीज इज हाईएस्ट। तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा भी मिल सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आया हुआ है क्वेश्चन दोबारा, ठीक है। तो ये आपको दोबारा मिले तो छोड़ना नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है ना जो बहुत कॉमन है, जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये तो इसी टॉपिक के अराउंड, जैसे मेटामॉर्फिज्म है, इस बार दो क्वेश्चन आ गए मेटामॉर्फिज्म पे, कोल का मेटामॉर्फिज्म पूछा, लोग कह रहे थे सर ये क्या अलग टाइप का, अरे नहीं भाई, व्हेन यू टॉक अबाउट द नॉन क्लास्टिक रॉक, वहां पे ये मेंशन है कि जिप्सम लाइमस्टोन एंड कोल इज द नॉन क्लास्टिक रॉक, उसने उस एस्पेक्ट से पूछा है, वो भी लाइन आपकी बुकलेट में लिखी हुई है, ठीक है। लेक्चर आप सुन सकते हैं, 4 ही लेक्चर है 1.5 घंटे के, अब तो ये खत्म ही हो गया है मिनरल रॉक, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, राइट, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन तो और इजी है बॉस, मैंने तो इससे इजी क्वेश्चन देखा नहीं, ये क्वेश्चन 12th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जब आपको पढ़ा रहा था इकोलॉजी, तो मैंने पहले भी बात की है इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में, और मैंने आपको बताया दैट वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, दे आर लाइक रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज, प्रोविजनरी सर्विसेज, ये हमने डिस्कस किया है क्लास में, ठीक है, कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है। दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सो इकोसिस्टम सर्विसेज आर द मैनी एंड वेरिड बेनिफिट दैट ह्यूमन फ्रीली गेन फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट and from properly functioning ecosystem, and these services are essential for human well-being and survival. They are broadly categorized into 4 टाइप, हमने पहले भी बात की है, और जनरली टारगेट पे रख रहा है टीचर ना इकोसिस्टम सर्विसेज को। तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रोविजनरी सर्विसेज होती है which basically are the product directly obtained from the ecosystems as food crops, livestock, fish, fresh water, timber, fuel, wood, ठीक है, फाइबर, कॉटन, हेम्प, मेडिसिनल प्लांट्स एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, राइट, ये सारी चीजें होती हैं उसमें। तो इसका तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है, अगर ये चला जाएगा तो आपको ये सब चीजें नहीं मिलेगी। देन रेगुलेटरी सर्विसेज का अपना इंपॉर्टेंस है, तो व्हेन यू टॉक अबाउट रेगुलेटरी सर्विसेज, सो यू हैव द क्लाइमेट रेगुलेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, फ्लड रेगुलेशन, वेटलैंड डिजीज रेगुलेशन, बायोडाइवर्सिटी, पैथोजेंस। तो अगर ये चले जाएंगे तो इससे भी तो कम होगा ना, राइट, ठीक है, ये भी तो एबिलिटी को हमारी कम करेगा, अगर रेगुलेटरी सर्विस चली जाएगी तो हमारे पास नुकसान तो तब भी होना है। ऐसे अगर आपकी कल्चरल सर्विस चली जाएगी तो ये भी नुकसान है। पॉलिनेशन दोनों में आता है, सपोर्टिंग में भी और रेगुलेटिंग में भी, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ठीक है, पॉलिनेशन दोनों में आता है। तो पॉलिनेशन की अगर आप बात करोगे तो रेगुलेटिंग और सपोर्टिंग दोनों में आता है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो है आपने बोला ना, वो रेगुलेटिंग भी है गाइस और सपोर्टिंग भी है, तो दोनों जगह आप उसको डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। अरे तो कोई भी चूज कर सकते हो ना, वो तो टीचर की गलती ठीक है ना, है ना। तो सपोर्टिंग और रेगुलेटिंग दोनों में है। अब ऐसा नहीं होता कि आपको दो ऑप्शन है, वो पुराना क्वेश्चन है, 14-15 के आसपास का क्वेश्चन है, ठीक है। देन वी हैव द कल्चरल वंस, कल्चरल वंस में भी कुछ नुकसान होगा तो आपको दिक्कत होगी, कल्चरल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज, राइट, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक हाइकिंग, बर्ड वॉचिंग, इको टूरिज्म, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन, एस्थेटिक एंजॉयमेंट ऑफ लैंडस्केप, कल्चरल हेरिटेज एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, राइट। देन इट कम्स सपोर्टिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज भी आपकी उतनी इंपॉर्टेंट है, राइट, which support for example nutrient cycling, phosphorus primary production, photosynthesis, soil formation, water cycling, right। तो इसका भी इम्पैक्ट होता है, अगर ये जाएंगी तो भी दिक्कत है। तो भैया सीधी सी बात है, जब इतनी प्रॉब्लम है तो अगर
लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉज लॉस ऑफ, तो भैया बायोडाइवर्सिटी हर जगह इन्वॉल्व है। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने से ऑल द सर्विसेज विल बी लॉस्ट। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है ह्यूमन बीइंग को। द वर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट ऑल द सर्विसेज विल बी लॉस्ट। You will lose provisioning services, regulating services, cultural services, supporting services. So these will be definitely lost, right? So they have to be taken care. तो ये सारी लॉस में रहने वाली है, ठीक है। ये सारी सर्विसेज जो है ये लॉस में रहने वाली है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि ABCD is the correct answer. We will lose our provisionally services also, regulating services also, cultural also, supporting also, right? So the correct answer here is fourth. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, but you have to understand first the importance, paramount importance of ecosystem services. Clear है सबको? क्वेश्चन नंबर 88. Anyone having any doubt in question number 88? Quickly guys, जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है? Anyone? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 89। सिंपल सा ही आता है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप क्वेश्चन को आराम से नहीं पढ़ेंगे और प्रेशर को ज्यादा फील करेंगे तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। तो वो नहीं करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैम ने कल की क्लास में शायद आपको चीजें पढ़ाई होंगी तो आपको पता चला होगा, मुझे तो ये कई साल से पता है कि कोई भी हैजार्डस मटेरियल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 89 इज एज पर द हैजार्डस मटेरियल। तो मुझे तो ये पता है कि ये कोड आपको याद रखना है, IRCTC। तो हैजार्डस मटेरियल जो होते हैं दे हैव few characteristics like infectivity, reactivity, corrosivity, toxicity and carcinogenicity. If you are fulfilling any of the condition then you are hazardous, otherwise you are not. तो यही बस माइंड में रख के इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना होता है कि infectivity, reactivity, corrosivity, carcinogenicity, toxicity, right, these are all character of an infective substance or hazardous substance, right? तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था आइडियली देखा जाए तो जिसको भी पता था, और ये बुकलेट में लिखा हुआ है बहुत क्लियरली भाई, वेस्ट में बुकलेट 3 में। सो अकॉर्डिंग टू हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, अ सब्सटेंस शैल बी क्लासिफाइड हैजार्डस इफ इट। तो क्या चीज होनी चाहिए उसमें? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इन्फ्लेमेबल है और कोरोसिव है तो होगा पक्का, डन। इफ इट इज इन्फ्लेमेबल एंड कोरोसिव इट विल बी देयर, राइट। हैज acute inhalation of LD50 less than 5000 ppm as a gas or vapor। तो अगर उसका लीथल डोज इतना कम होगा, राइट, तो भैया वो तो कोई क्राइटेरिया में है नहीं, तो वी कैन नॉट से कि इसके होने से ये होगा। नेक्स्ट, फॉर्म्स पोटेंशियली एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद वाटर। दिस इज ऑल्सो बिकॉज इट इज शोइंग रिएक्टिविटी, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। देन लेट्स कम टू इवेल्युएशन ऑफ डी। हैज एक्यूट होता है शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन बट हाई कंसेंट्रेशन, एक्वेटिक टॉक्सिसिटी विद 50% मोर्टेलिटी विद 24 आवर ऑफ जेब्रा फिश। नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसको हैजार्डस होना है तो ये फुलफिल करना पड़ेगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। एंड इन लास्ट, it shows it exhibit reactivity. So if it exhibit reactivity, then also it is hazardous. So as per me, only three characteristics exhibit inflammability and corrosivity hazardous, form potentially explosive mixture with water hazardous, exhibit reactivity. So the correct answer is ACE. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, लॉजिक से जब आप पढ़ेंगे तो हमने सब कुछ अटैच किया है, तो ACE इज द करेक्ट आंसर विच इज द सेकंड ऑप्शन एज पर मी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यस, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। और क्वेश्चन नंबर 89 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको?
एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे है, और ये सारा हमने एक्सप्लेन किया है। इन्फ्लेमेबिलिटी और इग्निटिविटी, कोरोसिविटी, राइट। फिर यहाँ पे LD50 क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लीथल डोज 50, ये पूछ लेते हैं भाई बहुत बार आजकल, मैंने इसीलिए अलग से लिख दिया, हालांकि इस ऑप्शन का कोई मीनिंग नहीं था। तो इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच किल 50% डेथ इन द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। लीथल कंसंट्रेशन 50, LC50 या लीथल डोज 50 आया हुआ है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, यहाँ पे मैंने देखो मेंशन भी किया नीचे, इग्निटिबिलिटी, कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, persistent bioaccumulation, these are some of the characteristics of hazardous material। ये इजी क्वेश्चन था, राइट। और ये आया मेरा फेवरेट, इकोलॉजी में मैं बार बार पढ़ाता हूँ और बार बार बच्चों को सुनाता हूँ कि भैया इसको मत छोड़ना, ये तो कीस्टोन है, देखते ही आदमी आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, रेविट फॉपर हाइपोथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम्स। रिमूवल ऑफ ए स्पीशीज लीड टू सिग्निफिकेंट चेंज दैट स्प्रेड थ्रू द फूड वेब। किसी स्पीशीज को निकालने से आपकी तबाही मच जाएगी फूड वेब के अंदर। एंड द स्पीशीज कैन बी कॉल्ड, मुझे तो पता है कि आंसर आपका कीस्टोन स्पीशीज होगा, क्योंकि यही वो स्पीशीज है जो आपके इकोसिस्टम के लिए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस होती है। नंबर कम होता है, जैसे टॉप प्रेडेटर हुआ, ह्यूमन है, हाइपर कीस्टोन, दबा दबा के मैंने इकोलॉजी में पढ़ा है, मुझे पता है ये आएगी, मुझे पता है ये दोबारा फिर से आएगा लौट के। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है आएगा ही, मैं तो आपको कह ही रहा हूं। मैंने आपको इसीलिए कहा है दैट यू शुड यूज जो आपका S400 टाइप रिसोर्स आपके पास है। एक तो PYQ क्लाउड, जिसमें सबका डिस्कशन है, उसको 2x पे या 1.5x पे अगर आप सुनते हैं, या फिर आप सोल्यूशन 2025 से लेके 20 तक के पढ़ते हैं, तो आपको वैसे ही 30-40 क्वेश्चन का एडवांटेज मिलेगा। ठीक है ना। हाँ, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनता इकोलॉजी अगर है तो। बट नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अदर ऑप्शंस। ये सब आपको पता है। क्लाइमेक्स स्पीशीज क्या होती है, सक्सेशन में मैंने दबा दबा के आपको पढ़ाया है। ठीक है, कि क्लाइमेक्स स्पीशीज क्या होती है, तो दीज आर द डोमिनेंट स्पीशीज इन द फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। स्टेबल और मैच्योर होती है, आपको पता है, ज्यादा इसके बारे में बात। इन्वेसिव स्पीशीज भी मैंने दबा दबा के पढ़ाया है। कौन होते हैं इन्वेसिव स्पीशीज, जो इंट्रूड कर लेते हैं किसी हैबिटेट में। दीज आर नॉन नेटिव स्पीशीज इंट्रूड इन अ न्यू एरिया, जैसे पार्थिनियम, स्टेरोफोरस, लेंटेना कैमरा। ठीक है, वाटर hyacinth, आउटकम ऑफ नेटिव स्पीशीज, राइट। एंड देयर रिमूवल डज नॉट यूजुअली डिस्क्राइब द फूड, डिस्टर्ब द फूड वेब। जैसे वाटर hyacinth है, जेब्रा मसल है, ये इसके एग्जांपल है। ऊपर क्लाइमेक्स स्पीशीज के एग्जांपल है, ओक एंड रेडवुड ट्रीज। ठीक है, हाँ। भाई रिश्तेदार तो नहीं कहूंगा, रिश्तेदार ऐसे भी तो होते हैं, एक आध दिन में चले जाते हैं। हाँ, सब रिश्तेदार थोड़े 50 दिन रहते हैं आपके घर पे। ठीक है, वो रिश्तेदार जो पॉजिटिव आपकी प्रॉपर्टी कब्जा ले, वो इन्वेसिव है। ठीक है, 2-4 दिन में आए, हाय हेलो करके खा पी के निकल जाए, वो भैया इन्वेसिव नहीं है। ठीक है ना। नहीं, बुआ को भी नहीं कहेंगे यार, देखो रिश्तेदार इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, आप उनको इन्वेसिव नहीं कह सकते। हाँ, इन्वेसिव आप कह सकते हो इफ सम, कोई आपके पास गुंडा टाइप पब्लिक आ जाए, वो आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले, इस तरह के लोग इन्वेसिव होते हैं। एनीवेज, दीज आर द स्पीशीज रेज पब्लिक अवेयरनेस और सपोर्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी। फ्लैगशिप स्पीशीज कहते हैं, कैरिज्मेटिक एंड वेल नोन इन पब्लिक, and their removal does not necessarily cause cascading ecological effect। एग्जाम्पल टाइगर है, जाइंट पांडा है, जिससे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को प्रमोट करते हैं। और लास्ट में आपका फेवरेट, कीस्टोन स्पीशीज। क्या कह रहे हो आप, क्या बताया था इन्वेसिव को? ये क्या है, नॉट फेज ऑफ सेक्स सुख। हाँ, तो इन्वेजन किसने कहा कि सेकेंडरी सक्सेशन में इन्वेजन हो रहा है? जो हमने स्टेप बताए थे वो प्राइमरी थे ना सारे। मैंने आपको बताया तो है भाई, न्यूडेशन, इन्वेजन, वो जितने भी पांचों स्टेप हैं वो प्राइमरी सक्सेशन के हैं। आपको किसने कह दिया प्रिया पाठक, आप उसको रिवाइज तो करते नहीं हो। ठीक है, फिर आप कहते हो कि जी ऐसे था, अरे भैया वो पार्ट ही नहीं है सेकेंडरी का, तो मैं क्यों कहूंगा? थोड़ा रिवाइज करो उसको, है ना। तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो प्राइमरी का पार्ट है। इन्वेजन जो है, जो हमने स्टेप करे थे, वो प्राइमरी के थे सारे स्टेप।
सेकेंडरी तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। कीस्टोन स्पीशीज दैट हैज अ डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट, removal of a keystone species lead to significant change in the structure of community and can cause trophic cascade, पूरा बर्बाद कर सकता है इकोसिस्टम को। इसी को आपने कहा था रेवन पॉपर हाइपोथेसिस। एंड दे हेल्प द मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस। बायोडाइवर्सिटी एग्जांपल जैसे मैंने बताया था उस दिन भी, आपको इतने सारे एग्जांपल मैंने लिखवाए थे। सी ऑटर कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ सी अर्चिन, वॉल्व्स इन येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो ये सारे एग्जांपल है इसके, राइट। सो अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने चूज किया क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। The answer is keystone species. That the removal of a species leads to significant change that spread throughout the food web, and the species is called as keystone species. Is it clear to each and everyone? Yes. Invasion अलग चीज है, invasive species अलग है। बहुत बढ़िया। So I hope it is clear till here to each and everyone. Anyone having any doubt till here? जल्दी बताइए फटाफट से, quickly. चलिए जी, देन आज की सभा हमारी यहीं तक रहेगी। And you people enjoy reading till 90 questions. Tomorrow when will come, right? मुझे दिखा देना। हाँ, दे रखे हैं सेकेंडरी सक्सेशन के टाइप्स हमने, बिल्कुल सही कह रहा है लड़का मैथी। ठीक है, ये बाबूजी गुजरात में पीएचडी करते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। चलिए, सो विद दिस आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। सी यू गाइस एट 7 फॉर द अदर क्लास। टिल देन, टेक केयर एंड कीप कैरिंग द मोमेंटम, राइट। यू आर वेलकम। चलिए जी, मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे, ठीक है, तब डिस्कशन होगा बाकी।